السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک کرامت جو ہے، مطلب اس طرح کے معاملات کچھ علماء کرام پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ ان پہ غلط ان کے اوپر یہ رکھ کے بات کی جاتی ہے کہ غوث پاک کا پاؤں جو ہے تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، مطلب اس طرح کے معاملات یہ پیش کرتے ہیں علماء کرام۔ اس طرح تو کوئی بھی اس طرح کا اسلامی بندہ جو اسلام کو مطلب لوگوں تک اسلام پہنچاتا ہو، مطلب لوگوں تک پیغام اسلام کا لے کے جاتا ہو اور کافی سارے مسلمان کیے ہوں لوگ جس نے، وہ اس طرح کے کفریہ جملات نہیں بول سکتا، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح کے جملات تو فرعون ٹائپ کے لوگ بولا کرتے ہیں کہ تمام اولیاء کرام کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ تمام اولیاء کرام کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ کچھ نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے، کچھ نے مطلب اس طرح کے معاملات یہ کچھ علماء کرام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں وہ جو علماء کرام وہ کہتے ہیں، ظاہر ہے ان سے تو وہ یہ مطلب انہوں نے اس طرح کے معاملات کوئی بھی نہیں کہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود سے یہ بات نہیں کہی ہے، یہ کچھ علماء کرام ہیں جو ان کے اوپر رکھ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، تو انہیں کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، کچھ ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھیں گے، پھر آگے ویڈیو کو شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث اعظم کے در سے ملتی ہے۔ آج بھی یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ وقت کا بیان ریلے بھی ہوتا تھا، نہ اس وقت کوئی چینل کی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی ٹیلی فون کے ذریعے کوئی ریلے کا سسٹم ہوتا تھا، لیکن روحانی سسٹم کے ذریعے غوث پاک کا بیان ریلے ہوتا تھا۔ اولیاء کرام اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر مریدوں کے ساتھ سنتے، اور کہیں پہاڑ میں غار میں عبادت کر رہے ہیں تو وہاں سنتے ہیں نا میرا بلی کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا۔ سارے ولیوں کی گردن پر غوث پاک کا قدم ہے، بڑوں نے شفقت سے اٹھایا ہوا ہے، چھوٹوں نے تعظیم سے اٹھایا ہوا۔ اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، وہ یہ فرعونی الفاظ کو، یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے، تو اللہ عز سو دوستو آپ نے سن لی ہائی لائٹس، آپ چلتے ہیں حبیب عطاری صاحب کا موقف سنتے ہوں، کیا کہتے ہیں سوال۔ بدل کے ایسے عظیم الشان ولی کو کہتے ہیں جو ایک زمانے میں اور ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، پوری دنیا میں ایک ہی کتب ہوتا ہے، اسے غوث بھی کہتے ہیں، اور کتب اللہ عز و جل کا نہایت ہی مقرب اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے نا تو وہ غوث اعظم کے در سے ملتی ہے۔ آج بھی یہ فیضان وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ بغداد ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا۔ آگے الیاس قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے، ان کا بھی موقف سن لیں۔ شریف میں آپ ممبر پر واعظ فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ سب سے پہلے حضرت علی بن حیدی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے خلیفہ بھی ہیں غوث پاک کے، یہی سب سے پہلے آگے بڑھے اور قدم مبارک تھام کر اپنے گردن پہ لیا تھا۔ پھر یہ دیگر اولیاء کرام نے بھی باری باری ایسا کیا۔ ان دنوں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت فرماتے تھے، یہ بھی بیان سنتے تھے غوث پاک کا۔ انہوں نے یہ سن کر غوث پاک کے جناب میں عرض کیا، علی وعلی رأسی، کہ آپ کا مبارک قدم میری گردن ہی پر کیوں بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر۔ اولیاء کی پھلدار شاخیں ہوتی ہے، تو جو شاخ پھلدار ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے، جن میں پھل نہیں ہے تو اکڑتی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے، ایک دکان نے اس کا انکار کیا تو ان کی ولایت سلب ہو گئی، چھین لی گئی۔ اس طرح کے ان کے اور بھی نہیں پہلے سے پیشن گوئیاں تھی کہ یہ برسر ممبر اس طرح ممبر پر کھڑے ہوئے اعلان کریں گے بغداد میں اولیاء کرام یہ شہنشاہ بادشاہ سلطان الاولیاء۔ اچھا، غوث پاک کا بیان ریلے بھی ہوتا تھا، نہ اس وقت کوئی چینل کی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی ٹیلی فون کے ذریعے کوئی ریلے کا سسٹم ہوتا تھا، لیکن روحانی سسٹم کے ذریعے غوث پاک کا بیان ریلے ہوتا تھا۔ اولیاء کرام اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر مریدوں کے ساتھ سنتے، اور کہیں پہاڑ میں غار میں عبادت کر رہے ہیں تو وہاں سنتے۔ میرا ولیات بھی سنتی تھی، 70,000 70,000 کا لکھا ہے۔ اتنے بڑا اجتماع ہوتا تھا، اور مائک سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا ان دنوں، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا تھا، لیکن جو سامنے بیٹھا ہے صاف آواز سن رہا ہے، وہی سب سے آخر میں بیٹھا ہوا بھی صاف آواز سن لیتا تھا۔ یہ بھی میرے مرشد کی کرامت۔ غوث پاک تو جیسے دنیا میں تشریف لائے، زبان پر اللہ جاری تھا، وہ رمضان کی چاند رات تھی،
दिन आया तो माँ का दूध नहीं पिया, सारा दिन नहीं पिया, जैसे सूरज डूबा दूध पी लिया, दूसरे दिन भी ऐसे ही किया। ये मशहूर हो गई बात के सैयदों के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है कि जो रमजान शरीफ के दिन में दूध नहीं पीता, रोजा रखता है, 80 दिन तक आपका भूखा रहकर इबादतें करना साबित है। यह करामत थी आपकी। 80 दिन कोई इंसान न खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता। उस वक्त तक नहीं खाते थे जब तक इनका रबी ने हुक्म ना देता था। हुजूर गौस सकलैन रहमतुल्लाह अलैह 15 साल तक रात भर में एक कुरान करीम खत्म करते रहे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह हर रोज डेली 1000 रकात नफल अदा फरमाते थे। अल्लाह पाक ने गौस पाक की मोहब्बत हमारे दिल में डाली है। ऐ मौला एक लम्हे के लिए भी गौस पाक की मोहब्बत हमारे दिल से ना निकले। जो जिसके साथ मोहब्बत रखता है वो उसी के साथ उठेगा। हम इंशाअल्लाह गौस पाक के साथ इनके उठेंगे, इनके कदमों में होंगे। सो दोस्तों, आपने रियाज कादरी साहब को मौके सुनिए, उन्होंने सारे जो है मामले आपके सामने बता दिए हैं कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के जब बयान रिले होता था तो बग़ैर स्पीकर के, बग़ैर माइक सिस्टम के जो है 70 हज़ार लोग जो है मुरीद जो पीछे बैठे होते थे उन तक भी रूहानी तौर पर आवाज़ पहुंचा करती थी। और भी कई मामला थे कि वो बचपन में जब पैदा हुए तो रमज़ान का महीना था, उन्होंने कुछ भी दूध नहीं पिया करते थे तो रोज़े रखा करते थे, दिन भर में दूध नहीं पीते थे और 80 दिन तक जो है वो जो है बग़ैर खाए पिए इबादत किया करते थे। तो इस तरह की उनकी करामात थी, लेकिन इसके अथेंटिक प्रूफ्स हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन ये इस तरह की मामला आपके सामने रख रहे हैं और इस तरह की बातें आपके सामने रख रहे हैं। चलें आगे चलते हैं, कोकम नूरानी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तमाम औलिया की ऊंची। एक माना तो ये कि सहाबा के बाद जो है उनको औलिया कहा जाता है, वो मुराद है। कुछ ये तफसीर करते हैं, मगर गौस पाक फरमाते हैं कुल्ले वली अल्लाह, तो मैं तो सारे वलियों को मानता हूं। तो अब मैंने इसमें आपको बताया हुआ है, मैंने इसको समझा कैसे था इस इरशाद को, वो भी मेहरबानी हुई थी। सारे वलियों के गर्दन पर गौस पाक का कदम है। बड़ों ने शफकत से उठाया हुआ है, छोटों ने ताजीम से उठाया हुआ है। आप देखें, आपने कोकम नूरानी साहब का भी मौक़िफ़ सुने, उन्होंने भी यही आपके सामने मौक़िफ़ रख दिया कि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का तमाम औलिया कराम की गर्दन पे पाँव में। मतलब इस तरह के मुसलमान को ये अल्फाज यूज़ कर सकता है। औलिया कराम में जो शामिल हो इस तरह के मामलात कभी भी नहीं करता है और इन चीज़ों से बचने की कोशिश करता है और ये मामलात में बड़ा उसका हुस्न ज़न होता है हर चीज़ के हवाले से। तो इस तरह के मामले आपके सामने ही उलमा कराम पेश करते हैं। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। ने कई दफा अर्ज किया कि आप देखें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की तरफ कितना बड़ा झूठ मंसूब किया गया। वो कसीदा गौसिया एक जिसके अंदर लिखा है तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है। सर ये जो जुमला है ना कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है, ये कोई मुसलमान नहीं बोल सकता, वली तो छोड़ दें। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी पे झूठ बांधा गया, उन्होंने नहीं कहीं कहा। ये बिल्कुल सही, कसीदा गौसिया है ही झूठ है, तो उन्होंने नहीं लिखा। अल्लाह का नेक बंदा तो हर वक्त डरता रहता है। वो ये फिरौनी अल्फाज, ये तो फिरौन बोलेगा कि मेरा लोगों के गर्दन पे पाँव है। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहीं बोला ये कि तमाम सहाबा की गर्दन पे मेरा पाँव है? सहाबा के सरदार कौन है? अबू बकर सिद्दीक। ये कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी औलिया अल्लाह के सरदार हैं। अगर वो सरदार हैं तो इस किस्म का फिरौनी जुमला बोलेंगे कि औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है? अस्तगफिरुल्लाह। तो बोले ये जुमला बोलते ही बंदा अपने ईमान की फिक्र करे। ये सब का सब फ्रॉड है, ये है ही झूठ है। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने जो कुछ बोला है वो मैं आपको बताता हूं। उनको किसी ने आके बताया कि अब्दुल कादिर ईद का चांद नजर आ गया। उन्होंने कहा मेरी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन मैं अपना ईमान बचा के कब्र में उतर जाऊं। सर जो अल्लाह का वली होता है उसको अपनी फिक्र लगी रहती है। वो इतना अकड़ खून नहीं होता कि लोगों को कहता फिरता है। ये सब झूठ है और क़यामत तक के लिए महफूज सिर्फ अल्लाह की किताब है। किसी बुजुर्ग की तालीमात भी महफूज नहीं है। इतने झूठ बुजुर्गों के ऊपर बांधे गए हैं। इसीलिए कुरान पाक में कई जगह है कि बुजुर्ग क़यामत वाले दिन खुद अपने मानने वालों के दुश्मन हो जाएंगे। 2.25 अरब ईसाई कह रहे हैं हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो हजरत ईसा इन लोगों के दुश्मन बनेंगे कि नहीं? क्योंकि हजरत ईसा की तो ये तालीमात नहीं है।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी की कहीं ये तालीमात नहीं कि आपको अल-मदद या गौसे आजम दस्तगीर शय्यन लिल्लाह, कहीं उनकी तालीमात नहीं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुश्मन बनेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम की कहीं तालीमात नहीं है कि तुम मुझे या अली मदद कह के पुकारो, उनकी तालीमात यही है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौला अली भी अल्लाह को पुकारते थे, मौला अली का मानने वाला भी वही होगा जो अल्लाह को पुकारेगा। अच्छा, वैसे कोई शख्स कहे ना कि मैंने ये किया, मैं ये, वो कहते हैं देखो कि डाकड़ खान है, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैं नहीं तो नजर आती, मेरा पांव तमाम औलिया की गर्दन पे है, ये मैं नहीं तो नजर आती। उधर कहते हैं सुभान अल्लाह। देखे आपको फर्क? ऐसे ही बाबा कह रहे थे सुभान अल्लाह, कोई और कहते मैं। सर बाबा भी नहीं कह सकता, नबी इस्लाम ने कभी ये नहीं किया, आप इस्लाम आजी का इजहार करना करते थे। तो ये बिल्कुल झूठे वाकयात हैं। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पाँव है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को तो छोड़ दें, आला हज़रत तो लिखा है कि औलिया अल्लाह के सरदार तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। तो इनसे जरा पूछें कि हज़रत अबू बकर की गर्दन पे भी पाँव है? वो आप देख लें। हाँ, वो कराची के मौलाना ने कहा है कि बड़ा सा सोचता रहा। एक माना तो ये कि सहाबा के बाद जो है उनको औलिया कहा जाता है, वो मुराद है। कुछ ये तफसीर करते हैं, मगर गौस पाक फरमाते हैं कुल्ले वली अल्लाह, तो मैं तो सारे वलियों को मानता हूँ। तो अब मैंने इस वेब आपको बताया हुआ है, मैंने इसको समझा कैसे था इस इरशाद को, वो भी मेहरबानी हुई थी। सारे वलियों के गर्दन पर गौस पाक का कदम है, बड़ों ने शफकत से उठाया हुआ है, छोटों ने ताजीम से उठाया हुआ है। कि औलिया में तो सहाबा भी दाखिल हैं, तो उनकी गर्दन पे पाँव कैसे है? तो इसका हल मुझे मिल गया। उन्होंने कहा छोटे बच्चे को जब यहाँ पे सवार किया जाए ना, तो वो कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो पाँव है सहाबा के ऊपर वो इस तरह वाला पाँव है, और जो बाकियों के ऊपर है वो दूसरे वाला है। तो सर मैंने इनकी तो पूरी गेम ही उलट दी है कि तज़किरतुल औलिया में फरीदुद्दीन अत्तार अल-मुतवफ़ा 627 हिजरी में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि जुनैद बगदादी कहते हैं कि बायजीद का औलिया अल्लाह में वही मकाम है जो जिब्रील का फरिश्तों में। तो सर जुनैद बगदादी तो परदादा पीर है अब्दुल कादिर जिलानी का। तो परदादा पीर कह रहा है। आप पता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी किस सिलसिले में बैत है? जुनैदी सिलसिले में। राइट, कादरी सिलसिला तो उनके नाम से चला ना, जिस तरह इलियास कादरी साहब आए तो अत्तारी सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन अगर आप पूछें कि अत्तार साहब खुद किसके हैं, तो कहेंगे कादरी रज़वी। तो अब्दुल कादिर जिलानी तो खुद जुनैदी थे, इसलिए कि वो जुनैदी सिलसिले के हैं। कश्फुल महजूब में जो तसव्वुफ के 12 फिरके हैं, उनमें एक जुनैदिया भी है। तो जुनैद बगदादी तो ये कह रहे हैं, अब हम आपकी माने हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माने हैं, उनके परदादा पीर की माने। तो ऐसी कहानी है। तो कसीदा गौसिया में इस तरह के जो झूठ लिखे हुए हैं, बिल्कुल झूठ है। मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। सर बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी बेटी फातिमा मेरे माल में से जो मुझसे लेना है ले लो, अगर अल्लाह ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं अल्लाह के हुजूर तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा। ये इसीलिए था कि बाद में वो कहानी ना आपको कराए। बिल्कुल सही। इतने मुतकब्बराना अल्फाज शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ गलत मंसूब है, उन्होंने कहीं नहीं फरमाया। सो दोस्तों, सारे उलमाग्राम को मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया और इंजीनियर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इस मौक़िफ़ इसके पेश किया कि कुरान और हदीस के दलाइल के मुताबिक कि आप सल्लम ने अपनी बेटी को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस तरह के मामलत कहे थे। तो लेकिन इलियास कादरी साहब कहते हैं कि वो जो जिनके साथ जिनके पीछे चलेगा वो उनके साथ उठाया जाएगा, जिसके तरीके पे चलेगा। तो इस तरह के मामला तो होंगे यकीनन, लेकिन बख्शिश नहीं हो पाएगी। इस तरह के मामला इस तरह नहीं होते कि किसी के आप पीछे आँख बंद करके चलेंगे तो आपकी बख्शिश हो जाएगी और उसके साथ आपको उठाया जाएगा तो वो आपको बख्शवा लेगा। इस तरह के मामला नहीं होते। तो आई होप आज की स्टोरी आपको समझ आ गई होगी। इनकी स्टोरियाँ जो बताई जाती हैं, कहानियाँ जो बताई जाती हैं, वो इस तरह के मतलब ऑथेंटिक प्रूफ के साथ नहीं होती हैं, ये कहानियाँ बनाई गई होती हैं। और जो जिसके ऊपर बना रहे होते हैं उन्होंने भी इस तरह की तालीमात नहीं दी होती हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाएँ। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तो रहनुमा।